اس رات مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے بڑی قرآن کی آیت، اور اس کے اندر ایسے راز تھے کہ شیطان اور جن بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تصور کرو کہ ایک دروازے کے پیچھے بے انتہا رازوں کا جہاں اور ایک عجیب و غریب مابعد عالم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آیت الکرسی اس دروازے کی کنجی ہے۔ اس میں اسم اعظم سے متعلق نشانیاں ہیں جو ہزاروں سال سے چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی مدد سے بزرگ اپنی روحانی بصیرت کھولتے تھے اور جسمانی اور روحانی دونوں عالموں میں گہرے سفر کرتے تھے۔ آج تم دیکھو گے کہ جادوگر، جن اور شیطان آیت الکرسی سے کیوں ڈرتے ہیں، اور تم اس کے راز بھی جانو گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور اس میں 9 جملے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا نام، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ عظمت، قدرت اور اثر والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بھی بڑی ہے، جو ہماری عقل کے سمجھ سے باہر ہے، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی ہے جو بڑے صحرا میں پھینکا گیا ہو۔ آیت الکرسی اللہ کے کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکومت، اس کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے اور بے پناہ قوت کا بیان کرتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھ سکیں کہ غیب کی دنیا میں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کانپ جائے اور ہم یہ سہ بھی نہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلچسپ حدیثیں ہیں جو بتاتی ہے کہ آیت الکرسی دوسری آیتوں سے مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ تاریخ میں کمی ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون لے رہا ہے۔ ایک رات میں انتظار کرنے لگا تو ایک ایسی مخلوق دکھی جو بہت لمبا اور جوان تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ہاتھ دو، اس نے ہاتھ دیا۔ ہاتھ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی کتوں جیسے۔ میں نے پوچھا کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے بدصورت کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں۔ میں نے اس پر یقین کیا، کچھ کھانا دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کل رات جس کو تو نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ میں نے بتایا اور کہا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ دوسری رات وہ جن پھر آیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر چوری کرنے کی کوشش کی اور میں نے پکڑا، بہت منت کی اور قسمیں کھائی اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جن نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنا سب سے بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا جب تم سونے جاؤ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک تمہارے لیے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ جب ابو ہریرہ نے صبح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں پتا ہے
कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर है और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे, कुछ सूरज से भी बड़े, फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में गुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म कुर्सी के अंदर है। कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करती है। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया को, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को जाहिर करता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का हर पांव 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के पांव 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हो तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि आसमान और ज़मीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बनाया गया, जो हमारे याकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफ़र है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल है, एक छोटी सी सुई की नोक जहां से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरा खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि 100 करोड़ एटम हर सेकंड निकालने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर लम्हा अपनी कुदरत से कायम रखे हुए। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा तो सब खत्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम जाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है जो आयतुल कुर्सी याद दिलाती है कि हम किसके सामने खड़े हैं। इस राज को समझने के बाद इंसान गुनाह कैसे कर सकता है, नमाज कैसे छोड़ सकता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कैसे जा सकता है। हमारी ये बड़ी कायनात अल्लाह के अर्श के मुकाबले में एक छोटी लकड़ी जैसी है। तो सोचो अल्लाह खुद कितना बड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय इब्ने काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अबू अल मुंजिर, अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत कौन सी है जो तेरे पास है? उबय ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा तो उबय ने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा और फरमाया, मुबारक हो तुम्हें ये इल्म या उबय, यहाँ से मालूम हुआ कि अल्लाह की किताब की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है।
दिलचस्प बात यह कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही ये मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। यह बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुंचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़े कि दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे। पहला कदम, जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और मानी के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना जरूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं एक एक जुमले के साथ। अल्लाह सबसे बड़ा और शरीफ नाम। ये अल्लाह एटम को भी उतनी ही आसानी से पैदा कर सकता है जितनी आसानी से गैलेक्सी बनाता है। मिट्टी का कीड़ा भी बना सकता है, हाथी भी। उसकी कुदरत बेअंत, इल्म बेअंत, रहमत बे इंतहा। वो सिर्फ कहता है कुन और वो हो जाता है। ला इलाहा इल्ला हुआ, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये सब झूठों को रद्द करता है। बुत, पैसा, शोहरत, नफ्स, सिर्फ अल्लाह ही इबादत और मोहब्बत और दुआ का मुस्तहिक है। जो समझ गया वो किसी से नहीं डरता, ना बॉस से ना दुश्मन से। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल हय्य, हमेशा जिंदा। हम फानी हैं, एक दिन मर जाएंगे, वो कभी नहीं मरता। हम कुछ भी नहीं थे, वो था। हम खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रहेगा। अल कय्यूम, जो सब कुछ कायम रखे। अभी तुम सांस ले रहे हो, सांस कौन दे रहा है? अल्लाह। दिल धड़क रहा है, कौन धड़का रहा है? अल्लाह। जमीन घूम रही है, कौन घुमा रहा है? अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी कय्यूमियत रोक दे तो कायनात खत्म। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊंघ आती है ना नींद। तुम थक जाते हो, 2 दिन भी बिना नींद के नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। ये दुनिया अल्लाह की, ये दरख्त अल्लाह का, ये जिस्म अल्लाह का, ये जिंदगी अल्लाह की। जब चाहे वापस ले सकता है। कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ अमानतें हैं और एक दिन इन अमानतों का हिसाब देना है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, उसके पास शिफाअत कौन कर सकता है बगैर उसकी इजाजत के। डॉक्टर शिफा नहीं देता, अल्लाह देता है। रिज्क बॉस नहीं देता, अल्लाह देता है। जिंदगी माँ बाप ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। सिर्फ अल्लाह से मांगो और सिर्फ अल्लाह से डरो। इसमें अज़म आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। सोचो, एक ऐसा राज, एक नूर जो कायनात की गहराइयां खोल दे, दुआ कबूल करवा दे, मुरादें पूरी करवा दे। ये अल्लाह का सबसे बड़ा और पुर असरार नाम है। इसमें अज़म, जैसा कि लैलतुल कद्र रमज़ान में छुपी है, इसी तरह इसमें अज़म भी छुपा हुआ है। ये नाम आसमान और ज़मीन को हिला देता है। इसकी कुव्वत इतनी है कि दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें अज़म उलमा और औलिया के नज़दीक एक बड़ा राज है। ये अल्लाह का सबसे बुलंद नाम है। इंसान की दुनिया और आखिरत की खुशी मरीफतुल्लाह और मोहब्बतुल्लाह में छुपी है। आज लोग बेचैन क्यों हैं? अल्लाह की मोहब्बत नहीं। जितना अल्लाह को पहचानो उतनी मोहब्बत बढ़ती है। इसमें अज़म अल्लाह को सबसे बेहतर पहचानने का जरिया है। ये दुनिया और आखिरत की खुशी का फॉर्मूला है। सदियों से उलमा और तालिबीन इसके पीछे लगे हैं। कुछ कहते हैं ये अस्माउल हुस्ना में से एक है या चंद नाम है, लेकिन कौन सा ये जाहिर नहीं। ये छुपा हुआ होना इसकी कीमत को और बढ़ाता है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म सिर्फ लफ्ज नहीं, अल्लाह के मानी की गहराई है। इसको सिर्फ इल्म से नहीं, पाक दिल से समझा जाता है। इसमें अज़म जिंदगी जीने का तरीका है। इब्ने अरबी कहते हैं इसमें अज़म हर शख्स के रूहानी दर्जे के मुताबिक बदलता है। इमाम गज़ली कहते हैं इसमें अज़म दुआ कबूल करवाने का सबसे मुअस्सर नाम है, लेकिन नफ्स साफ करना जरूरी है। ये सिर्फ पाक दिल में ही गूंजता है। जब मोहब्बत हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। पहली बार जब मालूम हो कि अल्लाह कितना मोहब्बत करता है तो दिल लर्जे, आंखें भर जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलना ही अल्लाह के नाम का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब कय्यूम नाम देखते हैं जिसे बहुत से उलमा इसमें अज़म का हिस्सा कहते हैं। अल्लाह ने कायनात बनाई और सब कुछ उसके वजूद से, बका भी उसी पर है। हर लम्हा अल्लाह कुछ ना कुछ कर रहा है। कायनात पढ़ना मतलब अल्लाह को काम करते देखना। कय्यूम का राज कायनात की राज में छुपा है। कायनात में हर सेकंड बेशुमार मखलूक आती जाती रहती है, कुछ सेकंड्स में खत्म और कुछ घंटे में तो कुछ दिन में। तो अल्लाह इतनी मेहनत क्यों करता है? ताकि हर लम्हा तवाज़ुन बना रहे,
एक रिवायत में इब्ने कसीर ने लिखा कि इसमें अज़म इन आयतों में है हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक और हदीस तिरमिज़ी की, अबू दाऊद, एक शख्स दुआ कर रहा था, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ कि सब तारीफ तेरे लिए, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बड़ी शान वाला, आसमान जमीन को पैदा करने वाला है, या हय्यु या कय्यूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो इसने किससे दुआ की? इसमें अज़म से, जिससे मांगने पर देता है और पुकारने पर जवाब देता है। मोहम्मद हमदी यजीर ने फरमाया कि हुआ लफ्ज़ इसमें अज़म जैसा काम करता है क्योंकि सीधा अल्लाह की ज़ात की तरफ इशारा करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक फ़र्द, हई, कय्यूम, हाकिम, अदल, कुद्दूस, इमाम अज़म के नज़दीक हाकिम और अदल, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक या हय्यु और इमाम रब्बानी के नज़दीक कय्यूम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक छोटी चूंटी को अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलते कदम को जानता है। सबसे दूर गैलेक्सी में छोटा एटम कहाँ है, कहाँ जाएगा, वो भी जानता है क्योंकि वो ही हर अमल पैदा करता है। या अलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो उनके आगे पीछे हैं वो जानता है और दिल के राज को भी जानता है। इल्म में से कुछ नहीं जानते मगर जो वो चाहे। हमें इल्म भी अल्लाह ही सिखाता है। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए। वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, उनकी हिफाजत उस पर भरी नहीं। ये आयत अजमत है, तो ऐसे रब से डरो, उसकी इताअत करो, इबादत करो, कमजोर इंसानों से दिल न लगाओ जो अल्लाह की इजाजत के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। आयतुल कुर्सी की फजीलत, घर में लिख कर लटकाओ, रोज देखो, पढ़ो, सोचो, घर से निकलते वक्त पढ़ो। बीमारी, दुआ कबूल, शिफा, हिफाजत, रिज्क, कर्ज से निजात, काम में कामयाबी के लिए पढ़ो। आज हमने आयतुल कुर्सी, उसका मतलब, उसकी हिकमतें और राज समझे। अल्लाह हम सबको आयतुल कुर्सी के समंदर में डूबने और सच्ची समझ के साथ पढ़ने की तौफीक दे। यकीन करो, अगर इसे मानी के साथ पढ़ोगे तो राजों के दरवाजे धीरे धीरे खुलेंगे, मानी की दुनिया के दरवाजे खुलेंगे, सुकून के दरवाजे खुलेंगे, रूहानी और जिस्मानी बरकतों के दरवाजे खुलेंगे और दिल की बंद आंख खुल जाएगी। जो कुछ भी अच्छा लगा वो अल्लाह की तरफ से और जो गलती हुई वो मेरी तरफ से। अल्लाह मुझे और आप सबको माफ़ फरमाए। अगर आपको कोई बात सही ना लगी या इस्लाह करनी हो तो प्यार से कमेंट कर दें, मैं खुशी से कबूल करूँगा। बाकी अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आयतुल कुर्सी को रोज़ पढ़े। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन।